صرف 50 کلومیٹر کی انٹیلیجنس غلطی نے بھارت کی فضائی طاقت کو تباہی کے دہانے میں لا کھڑا کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جن رافیل طیاروں کا نریندر مودی کو 6 سال سے انتظار تھا وہ ایک ہی رات میں پاکستانی آسمان میں جل کر راکھ ہو گئے؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ دنیا کی 2 بڑی ایٹمی طاقتیں ایک گھنٹے میں 115 سے زیادہ طیاروں کے ساتھ آمنے سامنے آ جائیں گے؟ دوستو، یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں، یہ 6 اور 7 مئی 2025 کی وہ رات ہے جس نے جدید فضائی جنگ کا تصور بدل کر رکھ دیا۔ اگر آپ پاکستان کی فوج کی طاقت اور اس کی تاریخی جنگ کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ابھی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اگلا پارٹ آپ کو فوری پہنچے۔ میں ہوں امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ہسٹوریکل اردو۔ دوستو، 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی رات بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جس نے 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان روایتی جنگ کا پورا تصور پلٹ کر رکھ دیا۔ پہلی بار 2 پیشہ ور فضائی افواج مکمل جنگی ارادوں کے ساتھ آمنے سامنے آئیں، اور وہ بھی اس وقت جب دنیا سو رہی تھی۔ اور اس سے پہلے 4 دہائیوں میں طاقتور فضائی افواج نے ہمیشہ کمزور دشمنوں پر حملے کیے تھے، شام، یمن اور غزہ، جہاں مخالف اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس بار کہانی بالکل مختلف تھی۔ آخری پیشہ ور فضائی جنگ 1982 کی فاک لینڈ وار تھی، اور اس کے بعد کبھی 40 سے زیادہ طیارے آمنے سامنے نہیں آئے، مگر اس 1 گھنٹے کی جنگ نے 100 سے زیادہ طیارے فضا میں تھی۔ یہ روایتی ڈاک فائٹ نہیں تھی جہاں پائلٹ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر نشانہ بناتے ہیں، یہ بیونڈ ویژول رینج کی جنگ تھی جہاں سینکڑوں کلومیٹر دور سے پیچیدہ الیکٹرانکس مسٹرز کے ذریعے دشمن کو لا کر کے میزائل داغ دیا جاتا ہے، بالکل ایک ویڈیو گیم کی طرح، لیکن انجام بالکل حقیقی۔ بھارت نے اس آپریشن کا نام آپریشن سندور رکھا اور دعویٰ کیا کہ یہ 22 اپریل کے پہلگام حملے کا جواب ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ بھارت دنیا کو یہ ثابت نہ کر سکا کہ پہلگام سے پاکستان کا کوئی تعلق تھا۔ بڑے بڑے ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنی حکومت کو یہی بریف کیا، یا تو یہ فالس فلیگ تھا یا پاکستان کا کردار نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جنگ دفاعی نہیں تھی، یہ مکمل جارحیت تھی، مودی کی وہ پرانی خواہش جو 2019 کی شکست۔ ابھینندن ہے، میں بھارتی وایو سینا میں ایک لڑاکو ومان چالک ہوں۔ میں ٹارگیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کے ایئر فورس نے مجھے گرایا، اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا۔ MiG-21 کے گرائے جانے اور ابھینندن کی گرفتاری کے بعد سے دل میں پل رہی تھی۔ اس بدلے کی آگ میں بھارتی فضائیہ نے جنوب میں بحیرہ عرب سے لے کر شمال میں مقبوضہ کشمیر تک 10 ایئر بیسز اور 72 لڑاکے طیارے سری نگر، امبالہ، بٹھنڈا، جودھا پور اور بھوج سے رافیل، میراج 2000، سخوئی 30 اور MiG-29 آسمان میں پھیل گئے، اور سب سے اوپر تھی وہ فارمیشن جسے بھارتی فضائیہ نے گاڈزیلا کا نام دیا تھا۔ رافیل طیاروں کی وہ صف جن کے بارے میں مودی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ پاکستان کو سبق سکھائیں گے۔ ادھر پاکستانی فضائیہ پہلگام حملے کے بعد پہلے سے ہی ہائی الرٹ تھی، اواکس دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ پائلٹ رن وے کے قریب ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صرف 2 منٹ میں جوابی حکم ملا اور چند ہی منٹوں میں 42 پاکستانی طیارے فضا میں پہنچ چکے تھے، جن میں سب سے آگے تھے نمبر 15 اسکواڈرن کے کوبرا پائلٹس اپنے چینی ساختہ J-10C طیاروں کے ساتھ۔ رات کے 1 بجے تک دونوں ممالک کے 115 سے 125 طیارے سرحد کے دونوں جانب آمنے سامنے تھے۔ کوئی پائلٹ دشمن کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا، صرف ریڈار سکرین پر چند ڈاٹس نظر آ رہے تھے جنہیں ٹریک اور تباہ کرنا تھا۔ بھارتی پائلٹ کو سختی سے حکم تھا کہ پاکستانی حدود میں انٹری نہیں کرنا، 2019 والی غلطی دوبارہ نہیں دہرانا۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ بھارتی انٹیلیجنس کے مطابق پاکستان
PL-15 मिसाइल की रेंज 145 किलोमीटर थी, इसलिए भारतीय तैयारियों ने 150 किलोमीटर का फासला बरकरार रखा। लेकिन यही वो महलक गलती थी जिसने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया, क्योंकि पाकिस्तान PL-15 की असल रेंज 145 नहीं बल्कि 200 किलोमीटर थी, और इस 50 किलोमीटर के फ़र्क ने भारतीय तैयारों को दानस्ता तौर पर मौत की जर में लाकर खड़ा किया। भारत के वो राफेल तैयारे जिनके बारे में कहा जाता था कि इन्हें कोई नहीं मार गिरा सकता, सिर्फ 30 सेकंड में आका गोला बन गए। क्या आपको मालूम है कि 1 घंटे की पूरी लड़ाई में भारतीय तैयारे एक भी पाकिस्तानी तैयारे को लाख ना कर सके? क्या आपने सोचा था कि भारतीय कम्युनिकेशन को पाकिस्तानी इस तरह हैक करेगा कि दुश्मन की बातें भी असले की तरह इस्तेमाल होंगी? अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ये तारीखी सीरीज़ आपसे मिस ना हो। भारतीय तैयारों के मिसाइलों की ज़्यादातर रेंज 150 किलोमीटर थी और ये बात पाकिस्तान बखूबी जानता था, इसलिए पाकिस्तानी कमांडर सेंटर्स ने भारतीय तैयारों से महफूज फासला बरकरार रखा और यूं 50 किलोमीटर की एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजिक बर्तरी हासिल कर ली। पाकिस्तानी फोर्सेस को हुक्म था कि जब तक भारत हमला ना करे हाथ नहीं उठाना, ताकि दुनिया देखे कि जॉर्ज कौन है। रात 1:05 में भारत ने हमला कर दिया। तैयारों ने भी फायर किया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद भारतीय फौज ने GPS गाइड्स तोपखाने से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को कम से कम 9 मकामात पर मसाजिद, मदारस और घरों को निशाना बनाया। बावलपुर, मरीद के सियालकोट, कोटली और मुजफ्फराबाद में 31 बेगना शहरी, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थीं, शहीद हो गए और इस लम्हे पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक पूरी क़ुव्वत से जवाब देने का हक मिल गया। पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सलाहियत भारत से कहीं बेहतर थी। पाकिस्तानी कमांडर्स भारतीय तैयारों की हर कम्युनिकेशन मॉनिटर कर रहे थे और ज़रूरत पड़ने पर जाम भी कर सकते थे। सबसे पहले दुश्मन को उलझाने के लिए किसी मखसूस तैयारे को लाखिए भारतीय फॉर्मेशन के दरमियान एक मिसाइल दागा गया। तकनीकी ज़बान में इसे रैपी कहते हैं, और जब वो मिसाइल फटा तो भारतीय फॉर्मेशन में खौफ व हरास फैल गया। पायलट आपस में बेतहाशा बात करने लगे कि जैसे पाकिस्तानी माहिरीन ने हैक करके मज़ीद अहम मालूमात हासिल कर ली हैं। पाकिस्तान ने तेज़ी से इंडियन तैयारों को लॉक करना शुरू कर दिया, जबकि इंडियन तैयारे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेटजीज की वजह से पाकिस्तानी तैयारों को बार बार लॉक करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान ने दागे के PL-15 मिसाइलों का रडार सिस्टम इब्तिदा में बंद रखा, क्योंकि जब तक रडार ऑन ना हो दुश्मन को राफेल इसे देख नहीं सकता, और ये मिसाइल पाकिस्तान आवाकस के ज़रिए गाइड हो रहे थे, जबकि इंडियन रडार जाम होने की वजह से अपने तैयारों को कोई वार्निंग नहीं दे पा रहा था। जब PL-15 इंडियन तैयारों से सिर्फ 30 किलोमीटर रह के तब इनका रडार ऑन किया गया, और अब इंडियन पायलट्स ने अपनी स्क्रीनों पर देखा आवाज़ की रफ्तार से 30 गुना तेज़ एक मिसाइल उनकी तरफ आ रहा है। 30 किलोमीटर का फासला सिर्फ 30 मिनट में तय होना था। ये सोचने का वक्त नहीं था, सिर्फ 2 रास्ते थे, जंक्शन या मौत। पूरी लड़ाई में इंडियन तैयारे एक भी पाकिस्तानी तैयारे लाख ना कर सके और ना ही हिट कर सके, जबकि पाकिस्तान ने 7 भारतीय तैयारों को लाख करके PL-15 मिसाइल फायर किए, जिनमें दुनिया के बेहतरीन 4th और 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा राफेल भी शामिल था। 6 इंडियन भारतीय तैयारों की तबाही के इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए। 3 राफेल, एक मिराज 2000, एक सुखोई 88
और एक MiG-29, जिनमें से कम से कम 4 का मलबा मकबूजा कश्मीर में गिरा और इसी बेस के आसपास जहां से गॉडजिला उड़े। राफेल की तबाही का सबसे चौंका देने वाला सबूत वो ऑडियो थी जो पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्लाई। Rafale formation that I will share, the call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. जिसमें गॉडजिला फॉर्मेशन की विंगमैन ग्राउंड रेडार को बता रहा था कि इसे अपने तीसरे तैयारे से राब्ता नहीं मिल रहा। इसने फिजा में धमाका भी देखा है। जब भारत को 6 तैयारे तबाह हो चुके थे तो पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक तौर पर लड़ाई से अलग होना शुरू किया, लाक करना बंद किया, जेमिंग रोकी और भारतीय तैयारों को महफूज रास्ता दिया, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल फौज जंग को अना की लड़ाई नहीं बनने देती। भारत ने ये रास्ता अपनाया और अपने बच्चे कुछ तैयारे वापस बेसिस पर ले गए, मगर इस रात राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी को सबसे बड़ी मार्केटिंग में दफन हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले राफेल को कभी गिराया नहीं गया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने अमेरिकी चैनल ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में तैयारों के नुकसान का एतराफ़ कर लिया। 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. Launch out everything! Full retaliation! राफेल तैयारों के गिरने के बाद भारत ने अपनी शिकस्त छुपाने के लिए 4 दिन तक पाकिस्तान पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश की, मगर पाकिस्तान खामोश रहा। क्या आपको मालूम है खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फ़ोन करके जवाब ना देने का मशवरा दिया? क्या आपने सोचा था कि पाकिस्तान का जवाब ऑपरेशन शहीद बच्चों के नामों से मंसूब होगा? जब 6 और 7 मई की रात भारत के 6 तैयारे तबाह हो गए, पूरी दुनिया में खबर फैल गई, तो भारतीय क़यादत बौखलाहट का शिकार हो गई और इसी बौखलाहट में उन्होंने 8 मई से पाकिस्तान पर ब्रह्मोस और ड्रोन हमलों की एक मायूस कुन मुहिम शुरू कर दी, ताकि नाकाम ऑपरेशन सिंदूर को किसी तकनीकी कामयाबी के तौर पर आवाम के सामने पेश किया जा सके। लाहौर, रावलपिंडी, एयर बेसिस, क्रिकेट स्टेडियम्स और संती इलाकों को निशाना बनाया गया। भारतीय ड्रोन्स शहरों के ऊपर प्रवास करते रहे और लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे कि हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। हकीकत ये थी कि 2 इंतहाई अहम खलीजी शख्सियात ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करके कहा था कि भारत बड़ी अस्करी ताकत है, जवाब ना दो, क्योंकि जब भी माली मसला होता है तो आप हमारे पास आते हैं, कहीं एक और गज़ा ना बन जाए। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि ये हमारे वजूद का मसला है, हम ज़रूर जवाब देंगे और माली मसले में हम आपके पास नहीं आएंगे। ये कॉल ख़त्म हुई और जो हुआ वो तारीख का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान ने 4 दिन तक भारतीय जारियत को थकने दिया। इस दौरान 78 से ज़्यादा भारतीय ड्रोन मार गिराए, जिनमें सबसे ज़्यादा इसराइली साख्ता थे। कहीं ब्रह्मोस मिसाइल साइबर वारफेयर से हैक करके अपने रास्ते से हटा दिए गए और जो चंद हदफ तक पहुँचे उन्होंने मामूली नुकसान पहुँचाया, क्योंकि एसएल एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके थे। भारतीय मीडिया इस दौरान ख्याली दुनिया में कराची, सरगोदा और लाहौर पर कब्ज़े के दावे कर रहा था, जिस पर संजीदा भारतीय हलकों ने भी शर्मिंदगी का इजहार किया। 4 दिन की मुसलसल जारियत ने पाकिस्तान को मुकम्मल कानूनी और इखलाकी जवाब दिया और 10 मई की सुबह दोपहर की रोशन धूप में पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन
बुनियान अल मरसूफ का आगाज़ किया, जो इन 7 पाकिस्तानी बच्चों के नाम से मंसूब था जो भारतीय हमलों में शहीद हुए। भारतीय फ़ौज ने जिस मस्जिद को निशाना बनाया था, इसकी दीवार पर लिखा था बुनियान अल मरसूफ, सीसा पिलाई हुई दीवार, और यही अल्फाज पाकिस्तान के जवाब का उन्वान बने। इस ऑपरेशन ने भारत के कई एयर बेसिस और असासों को निशाना बनाया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की कमज़ोरियाँ पूरी दुनिया के सामने आ गईं और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और भारत से मुसलसल राब्ते किए, जिसकी तस्दीक खुद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी की। इस पूरी जंग ने जनूबी एशिया की सियासत बदल कर रख दी। वही अरब मालिक जो पाकिस्तान को खामोश रहने का मशवरा दे रहे थे, अब पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें कर रहे थे, और सिर्फ एक राफेल की कीमत पाकिस्तान की तमाम बेसिस के मजमूई नुकसान से ज़्यादा थी। मगरब जो भारत को चीन के मुकाबले में एक ताकतवर इत्तेहादी समझता था, इस तासर के बाद भी शदीद दचका लगा और भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ ने 4 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद तस्लीम किया कि जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान उन्हें बता रहा था कि भारतीय हथियार कहाँ फ़ाल हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके पास 3 साल से ज़्यादा इक़्तिदार अभी बाकी है और शर्मिंदगी के बदले की ख्वाहिश अभी भी ज़िंदा है। इसलिए पाकिस्तान को इस बात को इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जियो हिस्ट्री उर्दू के साथ जुड़े रहें।